یہ ZBC کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین. یہ پروگرام ہر روز رات 8 بجے ہمارے YouTube چینل پر پیش کیا جاتا ہے. آج بدھ ہے اور نومبر کی 5 تاریخ. ZBC سیربین سے میں ہوں جاوید چودھری. مسٹر الائچی کے نام سے جانے جانے والے زوران ممدانی نیو یارک کے پہلے مسلمان میئر منتخب. فلپائن میں سمندری طوفان سے 66 افراد ہلاک، درجنوں لاپتہ. امریکہ میں کارگو طیارے کو حادثہ، 7 افراد ہلاک. At approximately 5:14 p.m. Eastern Time tonight, UPS Flight 2976 from Louisville, Kentucky to Honolulu, Hawaii, an MD-11 with 3 crew members on board was involved in a catastrophic crash. جانیے انڈین وزیر اعظم کے سرحدی علاقوں میں مسلمان آبادی بڑھنے کے دعووں کی حقیقت کیا ہے. ایک گھسپیٹیا آپ کی زمین پہ قبضہ کر لے، آپ کو منظور ہے؟ ایک گھسپیٹیا آپ کا حق چھین لے، آپ کو منظور ہے؟ مصر کے شہر قاہرہ میں گرینڈ میوزیم کا شاندار افتتاح، توت انا آمون کے نوادرات کی نمائش. یہ گرینڈ ایجپشین میوزیم کا عظیم الشان افتتاح ہے جو 4000 سال پرانے اہرام گیزا کے قریب ایک نیا لینڈ مارک ہے. یہ قدیم مصری خزانوں کے لیے ایک وسیع و عریض گھر کی طرح ہے. برمنگھم میں ڈبل ڈیکر بس پر آتش بازی کا حملہ، 10 افراد گرفتار. اور جانیے کیا خوراک آپ کے جسم کی خوشبو اور کشش کو بدل سکتی ہے. مزید یہ بھی کہ اچھی ازدواجی زندگی کا راز کیا ہے. جنسی تعلق یا سیکس سے متعلق کارکردگی کو اکثر لوگ تعداد یعنی نمبروں اور دورانیے یعنی ٹائم سے جانچتے ہیں. گویا ایک شخص ایک دن یا ایک ہفتے میں کتنی مرتبہ اور کتنی دیر تک اپنے پارٹنر کے ساتھ جنسی ملاپ کر سکتا ہے. تو کیا سیکس کے میدان میں پرفارمنس ناپنے کا یہ طریقہ درست ہے؟ اس کے علاوہ دیگر خبریں بھی آج کے سیربین میں شامل رہیں گی، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ. کہ عوام نے انہیں تبدیلی کے لیے ووٹ دیا ہے. سابق صدر اوباما اور دیگر رہنماؤں نے ممدانی کو جیت پر مبارکباد دی ہے. ماہرین کے مطابق ممدانی کی فتح ڈیموکریٹک پارٹی میں بائیں بازو کی نئی قوت کے ابھرنے کی علامت ہے. Housing and job creation are a priority. Bring some peace. Experience, competence. Just focus on the actual crime. For those of us who lived through 9/11, we nearly need someone who's going to have the competence in emergencies to protect us all. My favorite is Mamdani. Feels like he's one of us. Maybe in next 1 year, 1.5 years, he would probably solve most of the issues people facing daily. فلپائن میں حکام کا کہنا ہے کہ اس سال آنے والے اب تک کے سب سے طاقتور طوفان کے نتیجے میں کم از کم 66 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ لاکھوں افراد اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں. سمندری طوفان کے نتیجے میں فلپائن کے سب سے زیادہ آبادی والے جزیرے سیبو کے تمام قصبوں میں سیلاب آیا ہے. اس جزیرے پر سب سے زیادہ 49 افراد کی ہلاکت ہوئی ہے. سول ڈیفنس کے ایک اہلکار نے بدھ کو ایک ریڈیو انٹرویو میں بتایا ہے کہ 26 افراد اب بھی لاپتہ ہیں. فلپائن سے آنے والی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگ عمارتوں کی چھتوں پر پناہ لیے ہوئے ہیں، جبکہ گاڑیاں اور شپنگ کنٹینرز سڑکوں پر بہہ رہے ہیں. مرنے والوں میں فوجی ہیلی کاپٹر کے عملے کے 6 ارکان بھی شامل ہیں جو منگل کے روز سیبو کے جنوب میں واقع منڈاناؤ جزیرے پر گر کر تباہ ہو گیا تھا. اس ہیلی کاپٹر کو امدادی سرگرمیوں میں مدد کے لیے وہاں تعینات کیا گیا تھا. امریکہ کی ریاست کینٹکی کے گورنر کا کہنا ہے کہ لوئی ویل کے ایئرپورٹ سے اڑان بھرتے ہوئے کوریئر کمپنی UPS کا کارگو طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے.
जिसके नतीजे में 7 अफराद हलाक हो गए हैं। इतलात के मुताबिक तियारा लुइविल के मोहम्मद अली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भर रहा था जब हादसा पेश आया। इस वाक़े में 11 दीगर अफराद भी जख्मी हैं। केंटकी के गवर्नर एंडी बेशपियर का कहना है कि मरने वालों में तियारे के अमले के 3 अफराद के शामिल होने का इम्कान है। At approximately 5:14 p.m. Eastern Time tonight, UPS Flight 2976 from Louisville, Kentucky to Honolulu, Hawaii, an MD-11 with 3 crew members on board was involved in a catastrophic crash here in Louisville, adjacent to our airport. UPS will be releasing more facts as available. उनका मजीद कहना था कि जिसने भी हादसे की तस्वीर और वीडियो देखी है वो जानता है कि यह हादसा कितना खौफनाक था। हुकाम ने खबरदार किया है कि हलाकतों में इजाफा हो सकता है। यूपीएस की परवाज 2976 होनोलुलु हवाई के लिए 38,000 गैलन यानी 1,44,000 लीटर ईंधन लेकर रवाना हुई थी जब ये लुइविल में रन वे से फिसलकर करीबी इमारतों से जा टकराई। त्यारे के गिरने के बाद आसमान पर सियाह धुएं के गहरे बादल छा गए। धमाका इतना शदीद था कि इसने कम से कम 2 करीबी कारोबारों को अपनी लपेट में ले लिया, जिनमें एक पेट्रोलियम रिसाइकलिंग कंपनी भी शामिल है। मजीद मुमकिन धमाकों और फिजाई आलूदगी के खदशात के पेश नज़र इब्तिदाई तौर पर हवाई अड्डे के 5 मील के इतराफ में मुकीम लोगों को पनाह गाहों में जाने का हुक्म जारी किया गया था, लेकिन बाद में इस हद को कम करके 1 मील कर दिया गया है। इंडिया के वजीर आजम और वजीर दाखिला ने हालिया बयानात में दावा किया है कि सरहदी इलाकों में डेमोग्राफी में तब्दीली आ रही है क्योंकि बांग्लादेश से मुबैना तौर पर तारकीन वतन आ रहे हैं, जिससे मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। हुकूमती रहनुमाओं के मुताबिक ये रुझान सिक्योरिटी और सकाफती शनाख्त के लिए खतरा है, ताहम नाकदीन इसे एक सियासी बयानिया करार देते हैं। बीबीसी के शकील अख्तर और तपिस मलिक ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का जायजा लिया है कि आया मोदी के इन दावों के पीछे कोई ठोस शवाहिद मौजूद हैं या नहीं। एक घुसपैठिया आपकी जमीन पे कब्जा कर ले, आपको मंजूर है? ये घुसपैठिया आपका हक छीन ले, आपको मंजूर है? मेरे दादाजी का परिवार का जो सीनियर सिटीजन सबका कब्र है, तो मोदी बाबू को हम यही दिखाना चाहते हैं, आके खुदाई करके देख ले, लेकिन हम लोग को बांग्लादेशी करार मत करो। हम लोग इंडियन है, हम लोग को इंडिया में रहने दो। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने हाल में कई बार ये कहा है कि सरहदी इलाकों की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। उनका कहने का मतलब ये है कि जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पे बांग्लादेश के लीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, जिससे मुसलमानों की आबादी इन इलाकों में बढ़ रही है, जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक ख़तरा है। ये बात उन्होंने ख़ास तौर से बंगाल और आसाम के बारे में कही है। 2011 की जनगणना में आसाम के अंदर दशकीय वृद्धि दर मुस्लिम भाइयों का 29.6% हुआ। अगर घुसपैठ नहीं हुई है तो ये संभव ही नहीं है। और पश्चिम बंगाल के कई सारे जिलों में ये वृद्धि दर 40% क्रॉस कर गया। क्या वाकई बॉर्डर स्टेट्स में बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेशन बढ़ रहा है और सरहदी इलाकों में डेमोग्राफी चेंज हो रही है? ये जानने के लिए हमने असम और बंगाल के कुछ इलाकों का सफ़र किया। बंगाल के मुर्शिदाबाद खित्ते में ये नवाबों का महल हुआ करता था। नवाबों के अहद में बिहार, उड़ीसा और ढाका से लेकर कलकत्ता तक पूरे बंगाल का इंतज़ाम यहीं से चलता था। मुर्शिदाबाद एक सरहदी खित्ता है, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर बांग्लादेश की सरहद शुरू हो जाती है। मेरे पीछे ये बांग्लादेश यहाँ से शुरू हो जाता है, ये बॉर्डर एरिया है और ये बिल्कुल इसी बॉर्डर से मिली हुई ये पूरी बस्ती है यहाँ पर, और ये दूर दूर तक ऐसे ही बॉर्डर के आसपास आबादियाँ हैं। और ये सरहदी बस्तियाँ इन दिनों डर और खौफ की गिरफ्त में हैं। यहाँ हर किसी को अपनी शहरियत का सबूत देना होगा। यहाँ इंसानी जिंदगी कई तरह के कागजात पर टिकी हुई है। सब कुछ है हम लोगों का। हम लोग इंडियन आदमी हूँ। ये मेरा परिवार का राशन कार्ड है,
ये जो सरकार ने दिया है, ये मेरा एपिक कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, ये सरकार का दिया हुआ सब डॉक्यूमेंट्स है। क्यों डरे हुए हैं जब आपके पास सारा कागज है? हम लोग बंगाली हैं, बांग्ला बोलने से बोलते हैं ये सब बांग्लादेशी है, भगाते हैं। अब जैसे अब SIR शुरू होने वाला है तो काफ़ी डर तो होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर अभी तो लोग बहुत पैनिक में हैं कि जो डॉक्यूमेंट है अभी ढूंढ के देख रहा है कि मेरा जो पिता माता और उसके पिता माता का कोई नाम है कि नहीं है। ये तो अफेक्टेड एरिया है क्योंकि ये बॉर्डर के बगल में है। हमारा जो घर है, घर का बाजू में मेरा दादाजी का बाप का, मेरा दादाजी का जो सीनियर सिटीजन सबका कब्र है। तो मोदी बाबू को हम यही दिखाना चाहते हैं, आके खुदाई करके देख ले, लेकिन हम लोग को बांग्लादेशी करार मत करो। हम लोग इंडियन है, हम लोग को इंडिया में रहने दो। हम लोग को बहुत तकलीफ होता है, गाँव वाला बहुत परेशान रहता है। इस वक्त हम असम के मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट से गुजर रहे हैं। यहाँ कुछ लोगों को बांग्लादेशी शहरी कहकर डिटेंशन सेंटर में रखा गया और कुछ को तो डिपोर्ट किया गया है। सुबह 4 बजकर तो BSF गाड़ी आया था, तो हमको यहाँ में उठा ले गया, बॉर्डर है पुश बैक कर दिया। खैरुल इस्लाम इंडियन शहरी और एक सरकारी मुलाजिम हैं। गुज़िश्ता मई में जब गैर कानूनी बांग्लादेशी तारकीन वतन के खिलाफ मुहिम शुरू हुई तो हुक्काम ने उन्हें पकड़कर एक रात बांग्लादेश की सरहद के अंदर धकेल दिया। शिकायत दर्ज होने के बाद हुक्काम उन्हें वापस ले आए। 1973 মধ্যে আমার জন্ম। আমি এখানে LP স্কুল পড়ছি, এখানে ME স্কুল পড়ছি, এখানে হাই স্কুল পড়ছি, এখানে হায়ার সেকেন্ডারি পড়ছি, এখানে কলেজ পড়ছি। তারপরে আমি LP স্কুল যে স্কুলে আমি পড়ছিলাম সেই স্কুলে আমার চাকরি দিছে। আসাম সরকারে আমার সম্পূর্ণ যা ফ্যাসিলিটি পাইতাম আমার সব বন্ধ। আমার লগে অন্যায় করছে। गुलाब अली और उनकी फैमिली गैर मुल्की होने के शुबे में महीनों तक डिटेंशन सेंटर में कैद रहे हैं। डर लगा जे सरकार क्या करेगा। बांग्लादेशी तो गवर्सन होता है जे बांग्लादेशी धरो हटाओ। भीतर में तो डर लग गया। बांग्लादेश की सरहद पर वाक़ रियासत आसाम में शहरियत का सवाल अशरों से बहुत पेचीदा मसला रहा है। अब मुसलमानों की आबादी को भी सलामती का मसला बताया जा रहा है। मतिउर रहमान एक मुकामी रहनुमा है। उनका ख्याल है कि यहाँ ना इलीगल इमिग्रेशन का कोई बड़ा मसला है और ना ही आबादियों के तनासुब में कोई बड़ी तब्दीली आ रही है। पहले जैसा था ऐसा ही है डेमोग्राफी। हिंदू और मुसलमानों का जो ग्रोथ रेट है वो कंसिस्टेंट रहा आफ्टर इंडिपेंडेंस, लेकिन वो दिन जाते जाते और हर एक कम्युनिटी का जो बर्थ रेट है कम हो जा रहा है, मुसलमानों को भी कम हो रहा है। इंडिया के सेंसस के आदाद शुमार के मुताबिक आसाम और बंगाल में आबादी के बढ़ने की शरह 1961 से 2011 तक मुसलसल घटी है। आबादियात के माहिरीन का कहना है कि इन दोनों रियासतों में पैदाइश की शरह में भी तेजी से कमी आ रही है। लुत्फुर रहमान असम के एक फिल्म मेकर और सोशल एक्टिविस्ट हैं। वो कहते हैं कि एक तरफ डेमोग्राफिक तब्दीली का नैरेटिव चल रहा है और अब SIR यानी सभी बालिगों की वोटर लिस्ट असर नौ बनाने की बात हो रही है। इससे यहाँ के मुसलमान खौफ के एहसास से निकल नहीं पा रहे हैं। ये डर है कि NRC की तरह कुछ ऐसा ना हो जाए कि DC बोल दे डॉक्यूमेंट चेक बिना चेक किए ही कि आप बांग्लादेशी हो, तो ऐसा एक डर है। बाकी लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स हैं प्रूफ करने के लिए कि वी आर इंडियन सिटीजन। तो फिर डेमोग्राफिक चेंज या मुसलमानों की आबादी में गैर मामूली इजाफे का सवाल क्यों पैदा हो रहा है? असम के एक एक्टिविस्ट नीलिम दत्ता कहते हैं कि ये एक सियासी एजेंडा है। ये कोई नए नैरेटिव है नहीं। आप अगर मीडिया में, मीटिंग्स में, पब्लिक डिस्कोर्स में, एकेडेमिया में हर दिन एक झूठ को भी आप 100 बार बोल ले तो लगना शुरू हो जाता है कि सच है, वो बात है। सेकंड थिंग, ये पॉलिटिकली प्रॉफिटेबल है। जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है,
तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। बंगाली बोलने वाले लाखों शहरी इंडिया के दूर दराज के शहरों में काम करते हैं। कुछ अरसा पहले जब इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ मुहिम चलाई गई तो बंगाली माइग्रेंट्स वर्कर्स को पूरे मुल्क में बेपनाह परेशानियों का सामना करना पड़ा। बांग्लादेशी के नाम पर कई जगह उनकी बस्तियां गिरा दी गईं, हजारों को गिरफ्तार किया गया और कुछ को तो बांग्लादेश की सरहद में ले जाकर छोड़ दिया गया। एक तरफ तो रोटी रोजी की जद्दोजहद है तो दूसरी जानिब खुद को बचाने की लड़ाई। इन सरहदी रियासतों के लाखों गरीब इंसानों की जिंदगी पिछले कई अशरों से इसी कश्मकश में उलझी हुई है और ये सूरत हाल अब पहले से भी कहीं ज्यादा मुश्किल होती जा रही है। मिस्र में काहिरा के करीब दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया है। इस म्यूजियम में फिरौन तूत अना अमून के मकबरे से हासिल होने वाली तमाम कीमती अशिया नुमाइश के लिए रख दी गई हैं। तकरीब में मुल्की व गैर मुल्की मेहमानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हुकाम को उम्मीद है कि ये म्यूजियम मिस्र की सियाहत को नई जिंदगी देगा और दुनिया भर से सयाहों को अपनी जानिब मुतवज्जे करेगा। ये ग्रैंड इजिप्शियन म्यूज़ियम का अजीमुशान इफ्तिताह है जो 4000 साल पुराने एहराम गीज़ा के करीब एक नया लैंडमार्क है। ये कदीम मिस्री ख़जानों के लिए एक वसीओ अरीस घर की तरह है। मिस्र के फ़िरौन हुक्मरानों से जुड़े इस म्यूज़ियम की शानदार इफ्तिताई तकरीब में बैनुल-अक़वामी शाही ख़ानदानों, सरबराहान ममलिकत और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। यहाँ ड्रोन्स का इस्तेमाल करके रात के वक्त आसमान पर मिस्र के मशहूर फ़िरौन हुक्मरान तूतन खामून का मास्क बनाया गया। मिस्री रहनुमाओं का कहना है कि ये अजीम म्यूज़ियम उनके मुल्क की जानिब से दुनिया के लिए तोहफ़ा है। हम इस कदीम कौम की तारीख में एक नया बाब लिख रहे हैं। ये दुनिया में एक ही तहजीब के लिए वक्फ किया गया सबसे बड़ा म्यूज़ियम है। ये एक यादगार रात थी, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में तकरीबन 20 साल लग गए। इस ग्रैंड म्यूज़ियम की तकमील को बदअमनी और इलाकाई जंगों की वजह से ताख़ीर का सामना रहा है। गुज़िश्ता 1 साल से यहाँ आने वालों को म्यूज़ियम की चंद गैलरियों में दाखिल होने की इजाज़त थी जो हज़ारों आसार कदीमा से भरी हुई हैं, लेकिन इस म्यूज़ियम का एक अहम हिस्सा अब खोला जा रहा है जहाँ तूतन खामून के मकबरे से मुंसलिक तमाम मवाद दिखाया जा रहा है। टूटैन खामून से जुड़ी कई ऐसी अशिया भी हैं जो पहली बार दिखाई जाएंगी। कुल 5000 अशिया हैं जिनमें से 500 कभी नहीं दिखाई गई। यही वजह है कि ये तमाम अफराद के दिलों में घर करेंगी। उम्मीद की जा रही है कि अब लाखों सयाह मिस्र का रुख करेंगे। ये मुल्क अपने कदीम माजी की कशिश पर इन्हिसार कर रहा है ताकि इस म्यूज़ियम को कामयाब बनाया जा सके। बरतानिया के शहर बर्मिंघम में एक डबल डेकर बस को आतिशबाजी का निशाना बनाया गया है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। पुलिस के मुताबिक ये वाकया जुमे की रात शहर के मरकज में पेश आया था, जहां आतिशबाजी के मुतअद्दिद वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। हुकाम ने फुटेज का जायजा लेना शुरू कर दिया है, जबकि 13 से 23 साल के दरमियानी उम्र के 10 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि वाकये की मुकम्मल तहकीकात जारी हैं। माहिरीन का कहना है कि हमारी खुराक न सिर्फ सेहत बल्कि जिस्म की खुशबू और कशिश पर भी असरअंदाज होती है। स्कॉटलैंड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रॉबर्ट्स के मुताबिक जो लोग फल, सब्जियां और लहसुन ज़्यादा खाते हैं उनके जिस्म की बू ज़्यादा खुशगवार और पुरकशिश पाई गई है, जबकि गोश्त और अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल बदन की बदबू को तेज़ कर देता है। तहकीक से ये भी मालूम हुआ है कि रोज़ा रखने या फाका करने से भी जिस्म और सांस की खुशबू मुतासिर हो सकती है। जिनसी ताल्लुकात की माहिर डॉक्टर एमिली नागोस्की का कहना है कि अच्छी जिनसी कारकर्दगी का मयार ये नहीं कि ताल्लुक कितनी बार कायम होता है, बल्कि यह है कि दोनों शरीक हयात को कितनी राहत और कुर्बत महसूस होती है। आज BBC रीड्स में इस बात का जायजा लिया गया है कि इज़्दिवाजी ताल्लुक में एतमाद, गुफ्तगू और बाहमी खुशी की क्या अहमियत है और हकीकी लज्जत कैसे हासिल की जाती है।
जिनसी ताल्लुक या सेक्स से मुतालिक कारकर्दगी को अक्सर लोग तादाद यानी नंबरों और दौरानिए यानी टाइम से जांचते हैं। गोया एक शख्स एक दिन या एक हफ्ते में कितनी मरतबा और कितनी देर तक अपने पार्टनर के साथ जिनसी मिलाप कर सकता है। तो क्या सेक्स के मैदान में परफॉर्मेंस नापने का ये तरीका दुरुस्त है? क्या तादाद और दौरानिया अच्छी सेक्स लाइफ का पैमाना हो सकता है? BBC न्यूज़ के राफील अबू शाइबे की तहरीर पर मबनी BBC रीड्स के साथ मैं उमर आफरीदी हूँ। आपने अभी जो सवाल सुने उनका जवाब तो ना है। तो फिर क्या है अच्छा सेक्स और क्या है अच्छी सेक्स लाइफ? अच्छा सेक्स वही होता है जिससे दोनों पार्टनरों को खुशी और मज़ा मिले। माफ़ कीजिएगा, ये मैं नहीं कह रहा, ये कहना है जिनसी मामलात और ख्वाहिशात पर 2 किताबों की मुसन्निफ़ा और माहिर जिनसियात डॉक्टर एमिली नागोस्की का। BBC मोंडो से बात करते हुए उनका कहना था कि सैकड़ों जोड़ों से उनकी कहानियां सुनने के बाद उन्हें सबसे ज़्यादा अजीब ये बात लगती है कि लोग सेक्स से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए दूसरों की नकल करते हैं। वो ये समझने की कोशिश ही नहीं करते कि खुद उनकी जिनसी इश्तिहा किस चीज़ से भड़कती है और किस चीज़ में उन्हें ज़्यादा मज़ा आता है। डॉक्टर एमिली का कहना है कि ऐसे लोग जिनसी मुबाशरत को एक काम समझते हैं जिसे ख़ास तरह से करना होता है। उनके नज़दीक अगर आप एक ख़ास शख्स के लिए जिनसी रग़बत महसूस नहीं करते या ऐसे शख्स के साथ सेक्स करते हुए आपकी जिनसी कारकर्दगी अच्छी नहीं है, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप जिनसी तौर पर कमज़ोर हैं, बल्कि ये ऐन मुमकिन है कि उस शख्स के साथ जिनसी मुजामियत यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स आपको पसंद ही ना हो। माजी के मुकाबले में लोगों में जिनसी मिलाप की कमी के बारे में डॉक्टर एमिली का कहना था कि उनके पास मौजूद डेटा जाहिर करता है कि वक्त के साथ लोगों में सेक्स का रुझान कम हो रहा है। तहम उनका कहना था कि एक हफ्ते में कितनी बार सेक्स किया जाता है, इससे सेक्स लाइफ अच्छी या बुरी होने का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। वो कहती हैं कि एक ऐसे जोड़े के बारे में सोचें जो सेक्स तो अक्सर करता है, लेकिन दोनों पार्टनरों में से कोई एक लुत्फ़ नहीं उठा रहा होता। क्या आप ऐसे सेक्स को तरजीह देंगे या फिर ऐसे सेक्स को जो कभी कभार ही अंजाम दिया जाए लेकिन दोनों अफराद उसका लुत्फ़ उठाते हों? डॉक्टर एमिली का कहना है कि इसमें कोई शक नहीं कि ऐसे सेक्स को ही तरजीह दी जाती है जिसका मज़ा दोनों अफराद ले रहे हों, और यही सेक्स परफॉर्मेंस नापने का दुरुस्त पैमाना है। उनके मुताबिक एक हफ्ते में कितनी बार सेक्स किया गया, इस बात को गिनना आसान है, लेकिन आप उसका कितना लुत्फ़ उठाते हैं ये जानना थोड़ा पेचीदा अमल है। डॉक्टर एमिली का कहना है कि माशरे में कुछ ऐसे तसव्वुरात भी जड़ पकड़ गए हैं कि एक मखसूस वक्त में सेक्स कितनी बार किया जाना चाहिए और कितनी मरतबा इंजाल यानी ऑर्गेज़म होना चाहिए। उन्होंने बताया कि वो एक ऐसे जोड़े को जानती हैं जिसने कहीं पढ़कर ये तय कर लिया था कि उन्हें हफ्ते में इतनी बार तो जिनसी मुबाशरत करनी ही करनी है, मगर मसला ये था कि औरत इस जिनसी फेल में अपनी ख्वाहिश के तहत नहीं बल्कि इसे एक फ़र्ज़ जानकर शरीक होती रही, और जब ऐसा बार बार हुआ तो औरत को लगा कि इस अमल से उसका लुत्फ़ अंदोज़ होना शायद कोई माने ही नहीं रखता। इस बात ने इस रिश्ते को बहुत नुकसान पहुंचाया। वो कहती हैं कि इस मिसाल को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सेक्स की मिकदार माना नहीं रखती बल्कि जिनसी तस्कीन और इत्मीनान माने रखता है। डॉक्टर एमिली कहती हैं कि उनके तजर्बे के मुताबिक जिन जोड़ों में जिनसी कनेक्शन अच्छा होता है उनमें अक्सर 3 खुसूसियात पाई जाती हैं। पहली खासियत ये कि वो एक दूसरे को वाकई बहुत चाहते हैं और एक दूसरे को बहुत इज़्ज़त देते हैं, इसी सबब उनके दरमियान सेक्स भी बहुत अच्छा होता है। दूसरी खासियत ये कि वो सेक्स को दूसरी चीज़ों पर फ़ौक़ियत देते हैं और जानते हैं कि उनके ताल्लुक़ की बुनियाद ही सेक्स है। डॉक्टर एमिली के मुताबिक जब वो सेक्स नहीं कर रहे होते या कम कर रहे होते हैं तब भी वो सेक्स की अहमियत को तस्लीम कर रहे होते हैं और एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। तीसरी खासियत ये कि ऐसे जोड़े सेक्स के दौरान कल्चरल, ख़ानदानी या मजहबी रिवायात को रुकावट नहीं बनने देते। डॉक्टर एमिली कहती हैं कि अक्सर लोग सेक्स पर बात करने से इसलिए घबराते हैं
کہ کہیں ان کی کسی بات سے ان کے پارٹنر کے جذبات مجروح نہ ہو جائیں، مگر ان کے مطابق اس موضوع پر گفتگو کے لیے دونوں کو یہ مان کر چلنے کی ضرورت ہے کہ ان باتوں کا مقصد اپنی سیکس لائف میں بہتری لانا ہے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ پارٹنر کا خیال رکھنے اور اس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ایسی گفتگو ضروری ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر کسی جوڑے کو سیکس کے دوران مسائل کا سامنا ہے تو سیکس تھراپی ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ ایسے سیشنز میں تھراپسٹ ان معاملات پر گفتگو کرنا سکھا رہا ہوتا ہے اور اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ جب آپ ایسی گفتگو کرتے ہیں تو آپ کے اندر ڈر ختم ہوتا ہے اور آپ سیکس پر بات کرنے کو برا سمجھنا بند کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر ایملی کہتی ہیں کہ جسمانی خواہشوں کا دماغ سے بھی گہرا تعلق ہوتا ہے۔ مثلاً ایک عورت کو بچہ جنتے وقت بہت زیادہ تکلیف اٹھانا پڑی، مگر بچہ جننے کے کچھ عرصے کے بعد اسے جسمانی درد اور زچگی کے دوسرے مسائل سے مکمل نجات مل گئی ہو، لیکن جیسے ہی وہ اپنی سیکس لائف پھر سے شروع کرنے کا سوچے تو دماغ میں زچگی کی تکلیف تازہ ہو جائے، کیونکہ بعض اوقات درد جسم سے زیادہ دماغ کو متاثر کرتا ہے اور دماغ بدن کو گزری اذیت کا احساس دلا کر جسم میں ابھرنے والی شہوت کو دبا دیتا ہے۔ ڈاکٹر ایملی کے مطابق ایسی حالت میں فزیو تھراپی بھی کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سیکس کسی کے لیے تکلیف دہ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کسی کو جنسی مجامعت کے دوران تکلیف ہوتی ہو تو اسے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ ان تمام عوامل یا فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے طرز زندگی میں کون سی تبدیلیاں لانے سے سیکس لائف بہتر کی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر ایملی کا کہنا تھا کہ ان کا واسطہ بہت سے ایسے جوڑوں سے پڑا ہے جو تھراپی کے لیے آئے تو ایک بات واضح طور پر سامنے آئی، وہ یہ کہ دونوں کی جنسی خواہشات اور توقعات مختلف ہوتی تھیں۔ وہ مشورہ دیتی ہیں کہ سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ دوران سیکس آپ کو خود کیا پسند ہے، اور اپنے جنسی ساتھی سے بھی کہیں کہ وہ بھی اپنے اندر زیادہ لذت بخش احساسات کا کھوج لگائے۔ پھر دونوں ایک دوسرے سے ان معلومات کا تبادلہ کریں تاکہ دونوں کو ایک دوسرے کی جنسی ضروریات کا پورا ادراک ہو جائے، اور پھر جنسی مباشرت کا مقصد ایک دوسرے کی انہی ضروریات کو پورا کرنے کی صحیح ہو۔ ڈاکٹر ایملی ناگوسکی کے نزدیک گویا اچھی سیکس لائف وہ کہلائے گی جس میں دونوں ہی اپنے ساتھی کی خوشنودی اور فرحت کو مقدم رکھیں۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے قبل اب تک کی خاص خبریں۔